One of the worst affected states in India during the Friday protests that were held yesterday in relation to the comments made about Prophet Muhammad was Jharkhand, and the capital city of Ranchi witnessed extremely violent protests where the protesters clashed with the police. There were injuries sustained on both sides. In fact, one person was reported killed during the course of those protests in Jharkhand, and we could also see visuals of a policeman, in fact, complaining to his superiors about being at the receiving end of serious violence on the part of the people who were participating in those protests. The latest news coming in from those protests that took place in Jharkhand is that the death toll now stands at 2 individuals during the course of the clashes with the police yesterday. The exact nature of the death and the causes behind them are yet to be ascertained, and we'll await some confirmation on that front from the police authorities in Ranchi. But the death toll has now gone up to 2 people in those protests in Jharkhand. One person was confirmed dead late yesterday, and another individual has now been reported killed after those clashes took place in Ranchi yesterday following Friday prayers. In fact, the Ranchi SSP and the SP were among the policemen, among a whole host of others who were reportedly injured during the clashes that took place yesterday. And a bloodied SP was soon ferried away from the protest site, even as those on duty fired shots in the direction of an unruly mob that was present at the site yesterday. We're being joined by a reporter, Sohan, for more updates on what's been happening in Ranchi. Let me go across to Sohan Singh. Sohan, death toll जो है अभी रांची में वो अभी 2 लोगों को रिपोर्टेड डेड बताया जा रहा है. क्या बताएंगे आप इन अपडेट्स के बारे में हमें? कल जो घटना हुई थी रांची के मेन रोड में, जो कल मुस्लिम समुदाय के द्वारा जो कल प्रोटेस्ट किया गया था, और उसके बाद जो हंगामा हुआ उसमें अब तक खबर आ रही है कि 2 लोगों की मौत हो गई है, और दोनों प्रोटेस्टर थे जो कल प्रदर्शन में शामिल थे, और दोनों की मौत रांची के रिम्स में इलाज के दौरान हुई है. और इसमें भी अब पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है कि अब तक किसी की इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई है. पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे किसी को बख्शा नहीं जाएगा. अभी की हालात की बात करें तो सड़कों पर पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, और चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी तैनात हैं. सुबह से पुलिस की माइकिंग की जा रही है कि लोग अपने घरों में रहें, और रांची में कर्फ्यू लगा हुआ, अनावश्यक घरों से बाहर नहीं निकले. लेकिन कल जो घटना हुआ था उसमें मुस्लिम समुदाय की ओर से मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी. वहां के पुजारी ने कल कहा था कि अचानक लोग मंदिर में प्रवेश कर गए और पूरी तरह से तोड़फोड़ किया गया, मंदिर के पीछे आग लगा दिया गया था. तो उस घटना के विरोध में आज हिंदू संगठनों ने रांची बंद बुलाया है, और उन्होंने बंद का कॉल किया है. उन्होंने मांग किया है कि जो लोग भी कल मंदिर में घुसे थे, उन्होंने मंदिर में तोड़फोड़ किया था, उसको पुलिस जल्द से जल्द गिरफ्तार करे. तो पुलिस पूरी तरह से संयम बरत रही है, और रांची के एसएसपी सिटी एसपी घायल हैं, दोनों एडमिट हैं हॉस्पिटल में. कई डीएसपी थानेदार भी घायल हैं. तो अब आईजी और डीआईजी ने मोर्चा संभाला है, और रात भर से ही पुलिस चौकस से लगातार माइकिंग किया जा रहा है, और लोगों को बताया जा रहा है कि लोग अपने घरों से नहीं निकले. लेकिन अब इसके बाद पुलिस छानबीन कर रही है कि कल जो घटना हुई थी उसमें क्या साजिश थी. इसलिए मुख्यमंत्री ने कल बयान दिया है कि जो घटना हुई है वो पूरी तरह से सुनियोजित साजिश थी. तो कहीं ना कहीं पुलिस अब उस एंगल से जांच कर रही है कि किस तरह की साजिश थी, बाहर से लोग आए थे या कहां पे इसकी साजिश रची गई थी. तो अभी तक पुलिस ने ऐसा नहीं किया. जी शुक्रिया उस अपडेट के लिए. द डेथ टोल इन रांची हैज नाउ गॉन अप टू 2, and like our reporter Mr. Sohan Singh informed us, Hindu groups have also planned a protest in Ranchi later today in response to the violence that took place yesterday in the capital city of Jharkhand. We'll await more updates on that, and also a confirmation from the police about the steps they're taking to prevent any escalation today as well. A sense of tension still prevails in Ranchi. Hemant Soren, the Chief Minister of Jharkhand, spoke yesterday and called the protest that took place as premeditated and part of a larger conspiracy. He's also promised strict action against anybody who was involved. Let's listen to what he said. ये निश्चित रूप से चिंता का विषय है.
और सिर्फ आज की घटना नहीं, ये घटना से जुड़े विषय पर भी चिंता का आवश्यकता है। कुछ ऐसे शक्तियों का शिकार हो रहे हैं जिसका परिणाम हम सबको भुगतना पड़ेगा। कानून, संविधान भी यही कहता है कि जो जुल्म करता है उसे सजा भी मिलना चाहिए। Now, Jharkhand, of course, is a coalition government that's led by the JMM, whose leader, of course, is Hemant Soren, the current chief minister, but they're also allied with the Congress party. And the Congress party has, in fact, ended up blaming the police for having escalated the violence that took place in Ranchi yesterday. Blame was squarely put on the cops on the part of the JMM's ally, the Congress party. Let's listen into this interaction between a Congress member and Padmaja Joshi that took place yesterday following those protests in Ranchi. लोग रास्ते पे निकलते हैं और गोली चलाते हैं, ये सेक्युलरिज्म की परिभाषा कहां से हो गई? इरफान साहब, कैन यू बिलीव इट मैम, कैन यू बिलीव इट कि नमाज पढ़ के लोग निकलेंगे तो क्या गोली चलाएंगे? क्या मंदिर में लोग पूजा करेंगे? I never thought it would be possible, but it's happening, sir. Which is why I'm asking you, and you, a member of the Legislative Assembly, are sitting here and defending it, saying आक्रोश था तो गोली चला दी, कल को आक्रोश होगा हत्या कर देंगे, आक्रोश होगा आग लगा देंगे। मैडम, ये कैसा आक्रोश है बॉस? प्लीज डोंट डाइवर्ट मी मैम। मैं कहना चाहता हूं कि जो भी लोग गोलियां चलाए हैं इसकी सरकार जांच करेगी। मैं तो सरकार से मैं भी मांग कर रहा हूं कि एसआईटी गठन कर लिया जाए और जो सच का सच है वो सामने आना चाहिए। हमें लगता है कि बहुत बड़ी साजिश है मैडम। ये तो तस्वीरें साफ दिख रही है ना, पुलिस वाले पिट रहे हैं। बदनाम किया जा रहा है, पुलिस वाले कौन बदनाम कर रहा है सर? पुलिस वालों को कौन पीट रहा है? मैडम आप कैसे, आप रांची के बारे में मैडम आपको नहीं मालूम है? वहां पे वहां पे एक से एक साजिश करता लोग हैं, भाजपा के लोग हैं, वहां पे आरएसएस के लोग हैं मैडम। वो दिन रात प्लानिंग करते हैं कि कैसे, आप देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। एक सिर्फ इरफान साहब को रखिए और ये तस्वीरें दिखाइए जिसमें लोग भागते हुए जा रहे हैं पत्थर मार के। इसमें मुझे आप इरफान साहब बताइए, इन तस्वीरों में कौन सा आदमी भाजपा का है और कौन सा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का है? मैडम कौन सा है बताइए। मैंने भी कुछ वीडियो आपके जो ट्विटर में मैंने व्हाट्सएप में मैंने भेजा है, कृपया उसको भी चलाने का काम करें। अगर आप वो वीडियो देख लीजिएगा मैडम तो निश्चित तौर पे आप जो बातें कर रही हैं उसमें आप में चेंजेस आएगा। पुलिस वाले सामने से गोली चला रहे हैं मैम, देखिए मैंने वीडियो भेजा है आपको। क्या ये सुबह देता है पुलिस को में? आप अभी तक इतना नहीं बोल पाए कि जिन लोगों ने बलवा किया उनकी गलती है। मैडम मैं ये कहना चाहता हूँ किसकी गलती है, इसकी जांच होगी और जो दोषी है उस पर कार्रवाई होगा। हम लोग सेकुलर है, हम लोग सबकी रक्षा करते हैं। पुलिस हमारा है, सरकार हमारी है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे पुलिस वाले को कोई मार दे, ये अच्छी बात नहीं।